4 countries, including Pakistan, Bangladesh, Bahrain, and UAE. Apart from this, like I've also worked in KPMG for Karachi and Jeddah offices respectively. I'm also the part of ICAP's Fiscal Law Committee. I've served in ICAP's technical committee reviewing various subjects like taxation and law. I've also remained the director of Tax Masterclass organized by ICAP. Regarding my academics, I qualified CA back in 2015. I've also obtained my advanced diploma in international taxation and transfer pricing from UK. As far as my training career is concerned, I've conducted trainings in Pakistan, Dubai, and Singapore on taxation and law related subjects. I've also remained associated for tax awareness sessions at ICAP, ICMFE, BIFA, IFA, BIMS, and IFMP. About my teaching career, I've remained like faculty for CA taxation and law subjects, and I've successfully taught over 3,500 CA students. I've also remained the examiner of the professional bodies in Pakistan. So this was my brief introduction, and presently I am teaching CFAP 2 and CFAP 5, both corporate laws and tax planning and practices subjects at TSB Education. Zabardast. We also have Sir Adil here with us. Adil, would you like to introduce yourself? Assalamu alaikum. Sir, can you hear me? We can hear you. Thank you so much, sir. My name is Adil, and चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जो है वो मेरा ताल्लुक है. मैं लाहौर बेस्ड हूँ बेसिकली, और मैंने जो है वो डिलॉयट से अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए. 2016 में जो है वो मैंने डिलॉयट से आर्टिकल्स कंप्लीट किए. उसके बाद जो है वो मैं इंग्लैंड मूव कर गया. वहाँ पे मैंने 1 साल गुजारा. वहाँ पे मैंने एक चार्टर्ड फर्म के साथ जो है वो मैंने काम किया. फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे पाकिस्तान जो है वो वापस आना पड़ा. यहाँ पे मैंने 2-3 चार्टर्ड फर्म्स के साथ जो है वो मैंने काम किया, और मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो मेरा प्रोसेस री इंजीनियरिंग में रहा. 2019 में मैंने 100% अपने आप को जो है वो एकेडमिक फील्ड के साथ अटैच कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो स्टार्ट जो किया अपना टीचिंग करियर वो CFAP लेवल से किया, और CFAP 3 से जो है वो मैंने पढ़ाना शुरू किया. अभी तक जो है वो राउंड अबाउट 400 स्टूडेंट्स जो है वो मैंने जो है वो पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह CFAP 3 के. और इसके अलावा जो है CA के डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, PRC CFAP 3, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो MSA 2 जो है वो इन प्रोडक्शन फेज है. इसके अलावा अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं जिन्हें मैं जो है वो लीड कर रहा हूँ. KCCA प्रोफेशनल लेवल है, इसी तरीके से ICM में जो है वो प्रोफेशनल लेवल है. दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग माय इंट्रोडक्शन. बैक टू सर हसनैन. थैंक यू सर. Thank you very much, Sir Adil. Sir Adil teaches here CFAP 3, which is business management. वो पढ़ाते हैं, and और उनके साथ सर वजाहत हैं, वो भी पढ़ाते हैं CFAP 3. तो he takes care of the part of CFAP 3, और सर अदील जो हैं वो भी एक हिस्सा लेता है. सर वजाहत, अगर आप if you can give a brief intro of yourself. I think he's not here right now. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा with respect to I will talk about myself. अभी यानी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं CFAP 1 और CFAP 6, और उसके बाद फिर सर मुजम्मिल बता देंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, और CFAP 2 और CFAP 5, और फिर सर अदील बता देंगे. सर खलील इज नॉट हियर राइट नाउ. सर खलील जो है वो BFD पढ़ाते हैं CFAP 4, और उनका जो कोर्स है वो भी हमारे साथ TSB पे रन हो रहा होता है. एंड सर खलील हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट I think almost 17-18 years now. So BFD के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एटलीस्ट कराची में वो सर खलील के ही है, एंड इज अ फिनोमिनल टीचर. मेरे भी टीचर रहे हैं, सर मुजम्मिल के भी टीचर रहे हैं. I don't know about Sir Adil, but yeah. So start करते हैं with जी. I'm really sorry I missed the intro part. Thank you for having me on this call. Basically, my name is Wajahat, and I have around 18 years of experience of working in technology management and consulting background. So basically, I will be assisting Hasnan and Adil on this management course as well this time. So definitely, over to you, Hasnan.
कोई सवाल होगा, I will be there for to respond on the Q&As. Thank you. Perfect. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय वर्ड फाइल एंड मैं क्विकली एक बता दूंगा आपको अबाउट आवर LMS, हाउ वी टीच। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि इस कोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसे वर्कआउट करेगा। लेट मी शेयर माय वर्ड फाइल विद यू। सो इन माय एजेंडा आई विल टॉक अबाउट and this is about CFAB 1 and 6, ठीक है जी। CFAB 1 is financial reporting and 6 is audit। हम बात करेंगे about challenges जो आमतौर पे आते हैं with respect to preparation, और जो approach है of course वो क्या रहेगी, ठीक है जी। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा 1 और 6 के बारे में जो आमतौर पे पेपर की कॉम्पोजिशन है, मार्क्स की कॉम्पोजिशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो पेपर कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे होंगे हम, और इसके साथ साथ हम LMS एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे जो एट TSB यू विल गेट, यानी LMS / कोर्स एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे होंगे। एंड देन वी विल टेक सम Q&A, ठीक है जी। और अच्छा, चैलेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, देखें CFAB 6 का, अगर स्पेसिफिकली CFAB 6 और 1 के बारे में बात करें तो 6 से मैं स्टार्ट करता हूं। 6 में जो सबसे बड़ा चैलेंज, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना है CFAB 6 के बारे में अपने सीनियर से, या आप में से हो सकता है कुछ लोग एक्सपीरियंस भी हो जिन्होंने शायद CFAB 6 अटेम्प्ट किया हो और दोबारा चाहते हो कोई कोर्स वगैरह लेना। तो व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट CFAB 6? कभी के चैलेंजेस के बारे में क्या सुना है इसके बारे में? कुछ सुना है ऐसा कि भाई ये पेपर के पास होने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, बैरियर्स क्या आते हैं? एनीवन? मुश्किल आता है, अब्दुल बासित इज सेइंग, ऑलराइट। और एनीबॉडी एल्स? मुश्किल में क्या मुश्किल आती है जी? सिलेबस इज ह्यूज, ऑलराइट, सिलेबस बहुत बड़ा है। सो ना इट्स वेरी लेंथी, जबरदस्त। सो माय सिस्टर क्लियर्ड इन 4th अटेम्प्ट, ऑलराइट। आई डिड इन 3rd अटेम्प्ट, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा, सही है। अच्छा, सो या अगर मैं बताऊं अपने बारे में थोड़ा सा, एंड इफ आई रिलेट टू माय स्टोरी, मेरा पूरा CA जो है ना वो पहली अटेम्प्ट में निकला। मोमेंट वांट्स टू रेज हैंड। मोमेंट, यू वांट टू स्पीक समथिंग, से समथिंग? ऑलराइट, चलें। अच्छा, तो हमारे पास मेरी जो पूरा CA जो था ना वो मेरा पहली अटेम्प्ट में निकला था, और सिवाय 2 सब्जेक्ट्स के, और वो वही 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, which is CFAB 1 and CFAB 6। CFAB 1 जो मेरा निकला था वो 2nd अटेम्प्ट में निकला था, और 6 जो था दैट आई क्लियर्ड इन 3rd अटेम्प्ट। CFAB 6 में जो बड़ा मसला जो मैंने खुद ने भी फेस किया था, और अब मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ उसके अंदर उसको ओवरकम करने में, एंड दैट इज सबसे बड़ा मसला जो था ना वो ये होता था कि आपको एक तो कोर्स, ऑफ कोर्स बड़ा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट CA फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो बहुत ही बड़ा कोर्स है, ठीक है, लेकिन CFAB 6 इज रिलेटिवली लेस लेंथी, बट ऑफ कोर्स इट इज लेंथी। तो एक जो बड़ा चैलेंज नजर आता है दैट इज ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग स्किल्स के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि एट टाइम स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फॉर्म में बहुत सारी चीजें सीखे हुए होते हैं, लेकिन वो ड्राफ्टिंग उनको उस अंदाज से उसको उस एक्सप्रेशन उस अंदाज से करना नहीं आता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिंक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो करना उनके लिए मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम ड्राफ्टिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट दैट इज आल्सो अ वेरी बिग इशू, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला होता है विद रिस्पेक्ट टू CFAB 6 अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि कोर्स लंबा है, लेंथी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप हर एरिया उस लेंथ में जाके पढ़ सकें जिस लेंथ में उसको पढ़ना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड हैव वैरायटी ऑफ questions या variety of
सिनेरियोज जो कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस के जरिए से कवर करें, एंड वो लेंदी होने की वजह से ये एक इशू है जो कि आप फेस करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, ड्राफ्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा मैं और ब्रेक डाउन करूं तो ड्राफ्टिंग स्किल्स इज नॉट अबाउट एक्सप्रेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी का मसला कम होता है, मोर देन दैट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक, ठीक है। जो आपकी लॉजिक होती है कि आपने अपने आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन CFAP 6। सो मिसाल के तौर पे आपकी रिपोर्टिंग के अंदर आमतौर पे जो आपने छोटा जो आपका कैफ 8 है या इससे पहले कैफ 9 हुआ करता था ऑडिट, तो उसमें आमतौर पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं आते, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो स्टैंडर्ड की नॉलेज है वो, लेकिन CFAP 6 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, लिंकिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और उसमें आपको आपकी जो लैंग्वेज है सिर्फ स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट यानी से काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट नहीं है। उसमें आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन द रियल कॉन्टेक्स्ट। अब ICAP ने अपना स्टैंडर्ड भी बहुत रेज कर दिया है डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से। सो ये कुछ हमारे, अगर हमारे बड़े इश्यूज ड्राफ्टिंग है, बड़े इश्यूज लिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है, बड़े इश्यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट है और लेंदी होना है चैलेंजेस का, then our approach of the course should be based on these challenges, और इसी अंदाज से हमने इसको स्ट्रक्चर भी किया है। what we have done is कि this is a course very much structured for online audience, ठीक है। यानी you might find for example courses out there जो कि classroom की recording है, but those are not for the online audience। ये कोर्स पूरा स्ट्रक्चर ही बनाया ही, डिजाइन ही बेसिकली उस ऑडियंस के लिए किया गया है या वो स्टूडेंट्स के लिए किया गया जो कि घर में बैठ के उनकी नियत ये है कि उन्होंने घर में बैठ के पढ़ना है, ठीक है। सो क्लासरूम की आमतौर पे जो, इसीलिए हमने क्लासरूम की रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दी, उसकी वजह यह है कि क्लासरूम की रिकॉर्डिंग्स के अंदर बहुत टाइम वेस्टेज होती है जो कि स्टूडेंट्स के पास वैसे ही टाइम कम होता है, और CFAP में आपकी फर्म होगी, आपके पास टाइम कम होगा। सो उसकी वजह से जब हम डिजाइन ही ऑनलाइन की ऑडियंस के लिए करते हैं, सो इट सेव्स एटलीस्ट डबल द टाइम, ठीक है। हाफ टाइम के अंदर वो एक्चुअली वही बात हो जाती है जो कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल डबल टाइम होती है क्लासरूम के अंदर। सो इसके लिए हमने अगर मैं CFAP 6 की बात करूं तो CFAP 6 के अंदर हमने कोशिश ये की है कि we try to cover the course in 75 hours। ये होगा हमारा रिकॉर्डेड, ठीक है। और हमने 35 आवर्स का लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम ड्राफ्टिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली ड्राफ्टिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, और हमने हर एरिया, चाहे वो ऑडिट रिस्क का एरिया हो, रिपोर्टिंग का एरिया हो, कोड ऑफ एथिक्स हो, कंट्रोल्स वाला एरिया हो, ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशन की ड्राफ्टिंग हो, जो आपकी रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन, हमने हर एरिया के लिए हमने कोशिश ये की है कि डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप किए हैं, स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करते करते यू बिकम बेटर एट दीज थिंग्स। तो हमने यहाँ पे एक लाइव और रिकॉर्डेड का एक आपस में, लाइव के अंदर हम वही बातें रिपीट नहीं कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत समरी कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ड्राफ्टिंग के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, तो वहां पे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, देन आई विल अटेम्प्ट माई सेल्फ, वो आपके सामने मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम उसको डेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए थी, उसके ओपिनियन में क्या इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस आ रहा है, व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि हमारी अप्रोच में आ रही होंगी। इसके साथ साथ विल बी डूइंग 6 मॉक एग्जाम्स, ठीक है। हम 6 मॉक एग्जाम्स कर रहे होंगे, उसका फीडबैक भी आपको मिल रहा होगा। उसके साथ साथ यू विल आल्सो हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन है बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे 1 and 6 दोनों के अंदर 6 मॉक एग्जाम्स हो रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो कि आपको हेल्प करेंगे, एंड विद मी विल आल्सो बी अनदर टीचर असिस्टेंट जो कि हमें हेल्प कर रहे होंगे। सर नवाज इज अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, वो भी हमें हेल्प कर रहे होंगे विद द क्वेरीज। सो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास होगा फॉर क्वेरीज। इसके साथ साथ हम जो लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो द कोर्स विल बी अपडेटेड, हर 6 महीने में ये अपडेट होता है,
ठीक है, जिसमें लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चंस आते हैं, सो वी डिस्कस दैट। इससे पहले वाले अटेम्प्ट के अंदर वी हैड मेरिट सर्टिफिकेट एज वेल, माय स्टूडेंट फ्रॉम लाहौर secured a merit certificate as well. So it's a very well structured design course with more than 300 students every time that we have on this course. तो बहुत ही structured है, और उसके अंदर videos हमने बहुत 10 minutes की videos बनाई हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक काम करता हूँ, let me go through this LMS once, ताकि ये LMS का एक्सपीरियंस फिर आपको बाकी जगहों पर भी, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी, मैं एक रन डाउन कर रहा हूँ ताकि जो बाकी सब्जेक्ट्स के जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, और ये जो LMS का एक्सपीरियंस है ये आपको नजर आ जाएगा। So this is the course I'm going to show for CFAP 6, जो हमने जून अटेम्प्ट के लिए ये कोर्स रन कर रहे थे। इसमें अगर आप इसका स्टडी प्लान, डाउनलोड्स, ये दो हमारे मेन पार्ट्स हैं। उसके बाद देन यू हैव चैप्टर्स जो कि डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आ रहा है। सही है जी। सो यू हैव दिस डाउनलोड सेक्शन जहाँ पे यू विल हैव दिस मैनुअल, ठीक है। CFAP 6 के अंदर वी हैव अ मैनुअल, और हमारे पास 4 प्रैक्टिस किट्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज की प्रैक्टिस किट्स हैं। देन वी हैव सम हैंडआउट्स, कुछ टेम्पलेट्स बनाई हैं फॉर आंसर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होंगी। मैनुअल और प्रैक्टिस किट जो है वो, उसमें हमने प्रैक्टिस किट में हमने ICAP, ICW, ACCA और क्या कहते हैं, इवन ICAP की जो ICAP की प्रैक्टिस किट और पास पेपर्स दोनों के हमने जो वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी आ रही होगी, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे होंगे जो हम देख रहे होंगे। इसके साथ साथ स्टडी प्लान अगर आप देखें तो स्टडी प्लान में यू विल हैव वीकली प्लान अवेलेबल फॉर यू, जिसमें यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट टू वॉच, व्हाट टू रीड, व्हाट टू प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन भी आ रही है। यू कैन सी हियर यू हैव ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। अदर जैसे क्लासरूम की रिकॉर्डिंग्स में एक मसला ये भी होता है ना कि अगर आप सोचें कि 2 घंटे की, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग एक साथ पूरी की पूरी आपके पास आती है, दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। कि अगर आपके पास आधा घंटा है तो आपका दिल नहीं करता कि आप उसको देखेंगे, बिकॉज आपके पास टाइम इतना है नहीं, एंड यू विल फील कि नहीं यार मैंने कोई चीज अधूरी छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पे यू विल हैव वीकली लेसन प्लान्स अवेलेबल फॉर यू कि आपने क्या इस हफ्ते करना है, देखना है। सो आपके पास हर हफ्ते आपके पास 3-4 घंटे का वर्कलोड होगा जो कि आपको हेल्प करेगा। एंड इफ यू लुक एट आवर नंबर ऑफ आवर्स, 110 आवर्स के अराउंड तकरीबन ये कोर्स बनता है, विच मीन्स कि ये क्लासरूम के तकरीबन कोई 200 घंटे के बराबर कोई चीज है। ये इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि इतना इसमें बहुत सारे टाइम वेस्टर्स या टाइम वेस्टेज काफी सारा इस पर रिमूव हो जाता है। So you have these questions, practice questions, you have these standards, तो standard wise आपके पास आ रहा होता है। तो ये आपको हर हफ्ते आपके पास नया फॉर एग्जांपल वीकली वर्कलोड आपका अनलॉक हो रहा होगा जो कि आपको मिल रहा होगा। एंड देन यू हैव वीडियोस like this. For example, if I just click any of these videos to just give you an idea ये कैसे वर्क करेगा। So most of the videos are recorded on जो कि डिफरेंट होगा फीफो मेथड से या एवरेज कॉस्ट मेथड से, तो वो जो स्टेटमेंट होगी, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड भी ये कहता है आपसे कि आप डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करें, या फॉर एग्जांपल आपकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी कहती है कि आपके डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। Otherwise, the quality of video will actually help you engage with these sessions. आपको हेल्प करेगी कि इसमें हमने कोशिश ये की है कि हर स्टैंडर्ड के एंड में आपके पास रेफरेंसेस भी आ रहे हो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के, जिसमें हम रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड मैपिंग विद पास्ट पेपर्स, यू विल गेट टू नो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आईकेप के पास्ट पेपर्स कौन कौन से रेलेवेंट हैं इस एरिया से। सो इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। एंड CFAP 6 भी हमने इन्हीं लाइन्स के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है। सो इट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रो अबाउट let me get back to my Word file.
तो what you will get as a result of this हमारी जो अप्रोच है उसमें हमने लेटेस्ट पास्ट पेपर्स भी कर रहे होंगे हमारे पास. यू विल आल्सो गेट सम प्रैक्टिस किट्स आपको मिलेंगी, प्लस मैनुअल आपके पास होगा. ठीक है जी. और इसके साथ साथ ये हमने कुछ बातें आपको शेयर की. नाउ पेपर कॉम्पोजिशन थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. अच्छा, मैं जहां अभी तक मैंने जो चैलेंजेस की और अप्रोच की बात की, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस? एनी क्वेश्चंस? चले जी, थोड़ा सा पेपर कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं. इफ आई शो यू आवर सिलेबस, मैं अगर सिलेबस जरा शेयर कर देता हूँ. ठीक है. सुमैर ने एक सवाल पूछा कि ये कोर्स कवर क्या 6 महीने में होगा? ये कोर्स जो है वो 6 महीने में बिल्कुल कवर होगा. ये दिसंबर 2022 का बैच है. सो इट विल बी कवर्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर, सॉरी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. ठीक है. एक क्वेश्चन आया भी, कैफ 8 मिनट डिफरेंट टीचर से पढ़ा है, वुड देयर बी एनी इशू? अगर आपने पास कर लिया है देन दैट मींस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल जो आईकैप चाहता है. एंड CFAP 6 भी आप आप पढ़ सकते हैं. एंड जिस अंदाज से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है तो वो आपको बड़ा हेल्प करेगा CFAP 6. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया शफक का, हाउ टू स्टडी फिजिकल और ऑनलाइन? देखिए ऑनलाइन के, एंड आई थिंक अदर टीचर्स कैन आल्सो चिप इन, जो उनका जो समझते हैं कि बेहतर है. मेरे ख्याल में फाइनल लेवल के अंदर यू डू नॉट गेट टाइम टू अटेंड फिजिकल क्लासेस. ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. आप कह सकते हैं कि सिंस आई टीच ऑनलाइन, तो शायद मेरा ओपिनियन ये है, लेकिन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि फिजिकल में इस टाइम के अंदर जहाँ पे आपके पास इतना लिमिटेड टाइम होता है, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता फिजिकल में. एंड यू मिस अ लॉट ऑफ क्लासेस. फिजिकल में आप क्लासेस बहुत मिस करते हैं. फिर आप फिजिकल क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए एक बहुत अजियतनाक जो है ना वो अमल होता है. ये नहीं, बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप फिजिकल की मिस करने के बाद रिकॉर्डिंग सुने, तो वो दीज आर नॉट वेरी एंगेजिंग. ठीक है. इट्स लाइक यू आर वाचिंग समबडीज रिकॉर्डिंग्स, और उसमें आप फॉर एग्जांपल उसका हिस्सा नहीं है आप. ठीक है. और बहुत सारे लोग आमतौर पे, अब जो ट्रेंड है वो यही है कि CFAP के अंदर वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे होते हैं. जो लोग रजिस्टर भी कराते हैं फिजिकल में, वो इवेंचुअली ऑनलाइन और लाइव रिकॉर्डिंग्स जो है ना, लाइव की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं. सो बेहतर ये होता है, सजेशन मेरी ये होगी कि बेहतर ये होगा दैट यू टेक अ कोर्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑनलाइन ऑडियंस. ठीक है. जनरल क्वेश्चन हमारे पास कुछ आ रहे हैं. अच्छा, I have a general question, sir. पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? पेपर कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ. ठीक है. लेट मी हैव इस पे जरा मैं कमेंट करता हूँ कि पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. देखें, इसमें अगर आप देखें, एक सवाल अगर ये आ गया है तो मैं जरा इसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन, इसको मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है जी. सर, विच पेपर टू अटेम्प्ट आफ्टर पासिंग कैफ? ये पेपर कॉम्बिनेशन के ऊपर एक और सवाल आया, मैं तो उस पर भी बात करता हूँ मैं. ठीक है. सही है. तो मैं जरा क्विकली पहले जरा बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, एंड देन आई टॉक अबाउट पेपर कॉम्बिनेशन एज वेल. देखें, CFAP 6 आप लोगों ने कैफ 8 कैफ 9 जो ऑडिट था पुराना, वो आपने पढ़ा. तो उसमें यहाँ पे आपके पास देखें तकरीबन कुछ 30 से 35 मार्क्स का, सॉरी 25 30 मार्क्स का हमारे पास आता है ऑडिट रिस्क का एरिया. स्क्रीन शेयरिंग अगर अलाउ कर दें मुझे. ये समहाउ स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो डिसेबल हो गई है. एनीबॉडी फ्रॉम एडमिन? अच्छा, हो गई. चले, सही है जी. सिलेबस अगर आप देखें तकरीबन 20 से 30 मार्क का कंक्लूजन और रिपोर्टिंग का एरिया आता है. ठीक है.
यानी इसमें और इसमें आपका रिस्क वाला एरिया तकरीबन कोई 15 से 20 मार्क का आता है, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन होता है आमतौर पे। फिर प्लानिंग का, स्ट्रेटजी का कुछ पार्ट होता है, वो 20 से 25 मार्क का आ रहा होता है। थोड़ा सा हम ये भी बात कर लेंगे तो प्रैक्टिकली आमतौर पर होता क्या है, ठीक है जी। फिर एथिक्स का एरिया है 10 से 15 मार्क का। फिर स्पेशलाइज्ड एरिया है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये 15 से 20 मार्क का ये होता है। थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं CFAP 6 का पास पेपर्स का, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो 3-4 तरह के ब्रॉड कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे। एक होता है रिस्क वाला एरिया, ठीक है, इसमें आप रिस्क के ऊपर बात कर रहे होते हैं, यानी उसमें वो आपको प्लानिंग स्टेज पे खड़ा करता है और बोलता है भाई आप इसमें फॉर एग्जांपल आपके रिस्क क्या होंगे इस सिचुएशन के अंदर ऑडिट में। तो उसका देखें अगर आप, ये पिछले 19 अटेम्प्ट्स का ये एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई रिस्क वाला एरिया 20% आमतौर पे फॉर एग्जांपल मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 39% मार्क्स आपके एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग वाले एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पे वो आपसे कहता है सिचुएशन में आपने क्या करना है रिपोर्ट में, ठीक है जी। फिर आपके पास एथिक्स का एरिया 15% मार्क्स का आ रहा है, हालांकि वहाँ पे 15-20% है, बट यहाँ पे 15%। फिर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स का एरिया आता है, बट ये 9 टाइम्स आया है, इसका मतलब ये है कि हर दूसरे टाइम में ये कंट्रोल्स वाला एरिया आ रहा होता है। फिर आपके पास अदर एश्योरेंस और आपकी जो समराइज FS और इस तरह के डिफरेंट एरियाज के जो क्वेश्चंस हैं वो 12% मार्क्स आ रहे होते हैं। सो ये डिटेल एनालिसिस भी आपके पास अवेलेबल होगा LMS में, देन यू कैन हैव अ लुक एट इट। सो थोड़ा सा मैं आपको जो पेपर कॉम्पोजिशन है इसके बारे में, मैंने CFAP 6 की बात कर ली। अब थोड़ा सा बिफोर आई टॉक अबाउट CFAP 1 ब्रीफली मैं आपको पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं। देखिए जब आप फर्म में जाएंगे ना तो 2-3 चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। चैलेंजेस आपके सामने क्या आएंगे कि देखिए, एक तो आपके पास बिल्कुल लाइफ चेंज होगी बिकॉज आप आप वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ख्याल रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। टाइम की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की मैनेजमेंट कैसे आप, और उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है ना इनिशियली जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे वो कौन से होंगे। मेरी सजेशन सबसे पहले ये होगी कि आप फर्म के अंदर जो 2-3 सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा रेलेवेंट और अप्लाई होने वाले होते हैं, एक होता है आपका ऑडिट जो कि आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो CFAP 6 इज योर सब्जेक्ट्स जो कि आप डे 1 से आप इसी पे काम कर रहे होंगे। CFAP 1 is also a subject जिसके ऊपर day 1 से आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। And CFAP 5 taxation will also be a subject जिस पे आप काम करना शुरू करेंगे जब आप किसी भी ऑडिट करेंगे। तो टैक्सेशन, ऑडिट और रिपोर्टिंग, ये 3 वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं, ठीक है। और यही वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको इनिशिएट करना चाहिए अपना CFAP की जर्नी। इसकी एक और वजह भी है। एक तो फर्म की रेलेवेंस मैंने बताया आपको आर्गुमेंट, दूसरी वजह ये भी होती है कि MSA 1 को अनलॉक करने के लिए जो ऑडिट कॉम्पिटेंस का कोर्स है उसको अनलॉक करने के लिए यू नीड दीज 2 सब्जेक्ट्स टू क्लियर, ठीक है। यू नीड टू क्लियर दीज सब्जेक्ट्स, तो आपका MSA 1 अनलॉक होगा। MSA 2 को अगर आप देखें तो MSA 2 आपका अनलॉक होता है किससे, ये होता है आपका BFD से एंड बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है। MSA 1 आपका अनलॉक होता है किससे, CFAP 1 से, ठीक है, विच इज ऑडिट, एंड CFAP 6 से, यानी BFD इज CFAP 4 और BMS इज CFAP 3। तो आपका MSA 1 इस स्ट्रेटेजी में अगर आप पहले टर्म में जाते हैं तो CFAP 6 और 1 और 5 आप ले रहे होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये इंशाल्लाह तीनों आप अटेम्प्ट तीनों अगर आप पहले टर्म में क्लियर करते हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स CFAP, देन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी जो आपकी अगली होनी चाहिए वो होनी चाहिए CFAP 3, CFAP आपका 6, 1 और 5 हो गया, 3, 4, ठीक है। और अगर आप 2 अटेम्प्ट्स और उसके बाद आप CFAP MSA 1 ले रहे होंगे, तो ये 3 पेपर्स अगर आप लेंगे, बिकॉज इसमें आपको मैं MSA 1 इसलिए बताया क्योंकि अगर आपने ये तीनों पेपर्स क्लियर कर दिया, अभी हमारी अजम्पशंस है और ये बड़ी समझ लें आप बड़ी अजम्पशंस हैं कि आप तीनों एक ही टाइम में एक साथ
क्लियर कर रहे होंगे, लेकिन आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, आप में से वैसे कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहले अटेम्प्ट में या फिर अगर चलो एक रेफर के साथ वाले भी आगे आ गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर दोस पीपल? चले माशाल्लाह, गुड। सुमैर भी है जी, हमजा ने भी कहा, अब्दुल बासित, अब्दुल रहमान। तो अगर आप पहली अटेम्प्ट के अंदर, ये आपकी अगर पहली अटेम्प्ट है, ठीक है, उसमें अगर आप 1, 6 और 5 पास करते हो, ये आपको फॉर्म के लिए भी बहुत रेलिवेंट बना देगा। बिकॉज देखो ना, आप अगर आपको कोई टैक्स का सेक्शन देता है, कोई आपको रिपोर्टिंग में कोई सेक्शन देता है, और आप ऑडिट कर रहे हो, तो फिर आपको हाईएस्ट लेवल के ऊपर जब अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपकी फर्म के अंदर रेपुटेशन, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी वो तमाम चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला आपका होना चाहिए। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने आपको बताया CFAP 3 और 4 और MSA 1। इसकी लॉजिक ये है कि एक तो ये MSA 2 को आपको अनलॉक कर देगा, ठीक है, MSA 2 को आपको अनलॉक कर देगा 3 और 4, अगर आपने 3 और 4 भी पास कर लिया। दूसरा MSA 1, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 6 और 1 अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें 1 और 6 आपका रिवाइज होगा, पढ़ा हुआ होगा। MSA 1 को तैयार करना, उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो CFAP 3 और 4 और MSA 1 शुड बी योर सेकंड अटेम्प्ट लॉजिकली, जो आपको लेनी चाहिए। तीसरी अटेम्प्ट के अंदर आपके पास अब आपके पास, अगर मैं एज्यूम ये करता हूं कि आपने ये भी पास कर लिया, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप क्या कर रहे होंगे, CFAP 2 की तरफ जा रहे होंगे, विच इज योर लॉ, ठीक है, और आप जा रहे होंगे टुवर्ड्स MSA 2 की तरफ, जो कि आपका अब इंशाल्लाह अनलॉक हो चुका होगा। सो ये 3 अटेम्प्ट्स के अंदर आपका ये CFAP की जर्नी इस अंदाज से लॉजिकली चलनी चाहिए और आप पास होने चाहिए। CFAP 2 को मैंने एंड में क्यों किया, एक वजह ये थी कि ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं है MSA 1 और 2 के लिए, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट नहीं है। दूसरी वजह ये है कि CFAP 2 इतना लंबा और लेंदी है, हालांकि CFAP 2 की भी रेलेवेंस फॉर्म के हिसाब से बनती है, ठीक है, लेकिन ये इतना लंबा और लेंदी है कि इसको थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी वो खुद 2 सब्जेक्ट के बराबर चीज है ये, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एंड में रखा। शुरू में हमने MSA 1 को अनलॉक करने की बात की, दूसरी अटेम्प्ट में MSA 2 को अनलॉक करने की बात की, और थर्ड अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, I think you should attempt at least 3 subjects. शफक का सवाल है जी, how many minimum number of papers in CFAP should be attempted in one setting? मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट्स आपको उठाने चाहिए, ठीक है, 4 की तरफ मत जाइए, 4 विल बी टू मच ऑफ अ वर्कलोड और बर्डन। आपकी फर्म के अंदर जो आपके बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं, और आपको फर्म और आपकी पढ़ाई और क्लासेस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में 3 अटेम्प्ट्स, यानी 3 पेपर्स, 2 पेपर्स, 3 पेपर्स, ये आपको लेने चाहिए। देखिए आपके पास 3-3.5 साल की आर्टिकल्स होती हैं, ठीक है, 3.5 साल की आर्टिकल्स अगर आप की है, ठीक है, 3.5 साल की अगर आपके पास आर्टिकल्स हैं, तो 3.5 साल की आर्टिकल्स में आपके पास ठीक ठाक अटेम्प्ट्स होती हैं, सो यू कैन मैनेज योर अटेम्प्ट्स लाइक इसी अंदाज में। So you have number of attempts. कहने का मतलब you have number of attempts, you can manage your attempts इसी अंदाज में। अच्छा, पेपर्स को आप पहली अटेम्प्ट इनकी कब बनेगी? अगर ये स्कैफ क्लियर करते हैं तो पहली अटेम्प्ट आपकी कब बनती है? आपको हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? सो देखें, आपके पास आप एक ही 6 महीने के अंदर सारे क्लासेस मत लें, ठीक है, यू मस्ट मैनेज योर क्लासेस इन अ वे जहां पे आप पहले 6 महीने के अंदर 1 या 2 क्लासेस ले लें और अगले 6 महीने के अंदर दूसरी क्लासेस ले लें, ठीक है। सो एक साथ आप सारे क्लासेस मत लें, ठीक है, कोशिश करें कि आपकी क्लासेस जो है वो डिवाइडेड हो, यानी कुछ क्लासेस आप एक 6 महीने में ले लें, कुछ क्लासेस आप दूसरे 6 महीने में ले लें, दैट यू कैन मैनेज।
अच्छा, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ये भी आप कर सकते हैं कि आप अभी अगर कोई सब्जेक्ट्स पिक एंड चूज जो भी करते हैं उसको ओवर द पीरियड ऑफ लेट से, अगर आपका 1 ईयर का टाइम है या 1.5 ईयर्स का टाइम है, तो आप उस पर भी स्प्लिट कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक साथ स्टार्ट करें और तीनों की प्रिपरेशन साथ में करें, और फिर वंस आप जो है वो मतलब ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक करके ले लें, या ये भी कर सकते हैं कि तीनों एक साथ क्लासेस स्टार्ट कर लें। सही है जी। जी, any more questions on this paper attempting and stuff? देखिए, अभी तो पहली अटेम्प्ट 1.5 साल में बनती है, ठीक है। जैसे ही नया लॉ अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद 1 साल में बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद फिर 1 साल में बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन होपफुली दिसंबर 2022 अभी जिनकी आर्टिकल्स मेरे ख्याल में एक जिनकी 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 रजिस्ट्रेशन आई थिंक 1 जनवरी से पहले हो चुकी होगी, उस और दिसंबर 1 के ऊपर अगर जिनको 1 साल मुकम्मल हो चुका होगा तो उनकी अटेम्प्ट बन जाएगी दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो उनके दिसंबर 2022 तक मेरे ख्याल में 1 साल वाले यकीनन उनकी, क्योंकि ये बायलॉ अंडर अप्रूवल है, तो 1 साल वाले लोग भी दिसंबर 2022 में अटेम्प्ट दे सकेंगे, ठीक है। जून का अभी ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जून का थोड़ा सा अनक्लियर है अभी मामला, लेकिन दिसंबर वालों के लिए आई एम 100% श्योर कि वो 1 साल के बाद अटेम्प्ट दे सकते होंगे। अच्छा, 1 मिनट। एनी मोर क्वेश्चंस? वी वांट योर क्वेश्चंस। आपके अगर कोई सवालात हैं तो हम मजीद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो हमारा वो 1 साल का टाइम पीरियड है फर्स्ट हाँ, अटेम्प्ट के लिए, वो हमारा कैफ पास करने से स्टार्ट होता है या इंडक्शन में रजिस्ट्रेशन से? आर्टिकल जब हमारे रजिस्टर होना शुरू होंगे उसके 1 साल बाद, या जब हमने कैफ पास कर लिया तब से 1 साल के बाद? आई थिंक इट इज फ्रॉम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। मुजम्मिल, ये बात है ना, रजिस्ट्रेशन ही है ना? रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल का टेन्योर जो है उसमें। रजिस्ट्रेशन के बाद से होता है, कैफ पास करने के ओके, बाद से नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद से स्टार्ट होता है। ओके, थैंक यू सर। तो 1 दिसंबर 2022 तक अगर आपको 1 साल हो चुका होगा तो आप दिसंबर के अटेम्प्ट दे सकते हैं। द कट ऑफ इज 1 दिसंबर। CFAP 1, 2 and 6 as CFAP 2 is lengthy one and for time में टाइम ज्यादा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आया जी सर, फर्स्ट टाइम में CFAP 1, 2 and 6 as CFAP 2 is lengthy one and फर्स्ट टाइम में टाइम ज्यादा होगा। इट्स ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी, नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी। 1, 2 and 6 भी आप ले सकते हैं अगर आप 5 नहीं भी करते, बिकॉज देखो ना, 5 भी आपका कोई अनलॉक तो नहीं करने वाला, ठीक है। 2 भी आपका कोई अनलॉक नहीं करने वाला, यानी कोई प्रीरिक्विजिट तो है नहीं, ठीक है। टैक्स भी रेलेवेंट होता है और कंपनी लॉ भी रेलेवेंट होता है फर्म के हिसाब से, इन माय ओपिनियन। तो ऑफ कोर्स दोनों की रेलेवेंस कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होती है प्रैक्टिकली ऑडिट में। सर मुजम्मिल ज्यादा बेहतर बताएंगे इस बारे में। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली पास होके आए हैं कैफ 7, तो आपका लास्ट सब्जेक्ट ही, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट सब्जेक्ट आपका कंपनी लॉ था। तो अगर आप इमीडिएटली कॉर्पोरेट लॉ पिक करते हैं तो इसका एक एडवांटेज आपको ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अभी उसका कुछ पोर्शन तो पढ़ के आए कैफ के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली कैफ सीफैप का वॉल्यूम और कैफ के वॉल्यूम में मटीरियली डिफरेंस है, लेकिन एक फेयर आइडिया आपको होता है, ठीक है। अगर आपने लेट से 2 साल पहले एक चीज पढ़ी है और 2 साल बाद आप एक पढ़ें तो फिर उसमें आप चीजें भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर अभी रिसेंटली आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक एडिड एडवांटेज हो सकता है। तो अगर आप CFAP 2 भी पिक करते हैं तो इट विल बी अ राइट चॉइस इन माय व्यू। एनी क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशंस? कॉम्बिनेशंस पे अगर आपके सवाल है तो मजीद पूछ सकते हैं। सर, नवंबर 2021 में जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है दे कैन गिव अटेम्प्ट इन दिसंबर 2000। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जिनकी नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो ऑफ कोर्स 1 दिसंबर तक उनको साल हो जाएगा।
2022 तक, तो वो अटेम्प्ट दे सकते होंगे। थैंक यू सर अब्दुल बासित, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, एनी क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन, पेपर कॉम्बिनेशन? अच्छा, आप में से आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कॉम्बिनेशन? आपके जहन में क्या, आपका माइंड क्या बनता है सर? इफ यू कैन शेयर ऑन ग्रुप चैट, आपके आपके कॉम्बिनेशंस क्या है, अपने कॉम्बिनेशंस क्या है जो आपके जहन पे बनते हैं? व्हाट हैव यू गाइस डिसाइडेड? ये अभी तक कुछ सोचा है? सुमैर इकबाल कहते हैं जी 1 and 6, ठीक है जी, 2 आप ले रहे हैं। अच्छा, 3 attempts, हमजा कहते हैं जी 3 attempts ऑडिट रिपोर्टिंग एंड एसपीएम व्हिच इज बीएमएस, ठीक है। फिर एमएसए 1, बीएफडी लॉ, ऑलराइट, फिर एमएसए 2 एंड टैक्स, ऑलराइट। अच्छा, ये एक और चीज भी है, यानी इट आल्सो डिपेंड्स कि आपकी अपनी इंक्लिनेशन या कोई सब्जेक्ट, जैसे आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो मुझे बड़ा मजा आता था उसको पढ़ने में। सो आपकी अपनी इंक्लिनेशन और टेंडेंसी भी एट टाइम्स यू नो होता है कि यार मुझे दिल चाह रहा है इसको पढ़ने का, आई वांट टू स्टडी टैक्स, आई वांट टू स्टडी बीएमएस। सो एट टाइम्स आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं यार, मैं बीएमएस को बिठा लेता हूँ और 1 और 6 बिठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एमएसए 1 अनलॉक करना है। सो एट टाइम्स ये भी होता है कि यार बीएमएस और बीएफडी पिक कर लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू, फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्टडी बीएफडी, आई वांट टू स्टडी बीएमएस, दैट इज आल्सो पॉसिबल। बट इसके अंदर एक और बात भी है कि पेपर का गैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप पहला वाला वो देखें तो उसमें पेपर का जो गैप है ना, जैसे C5 1 और 6 में 2 दिन का गैप है, फिर 6 और 5 में 5 टेस्ट एंड में होता है तो उसमें 1 दिन का गैप है। सो यू विल हैव अ गुड गैप टू रिवाइज थिंग्स। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनल के लेवल पे जो पेपर्स हैं वो इतने बड़े हैं, उतने लेंदी हैं कि वहां पे आपके लिए रिवीजन के बगैर जाना जो है ना वो बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ओपन बुक एग्जाम भी है, C5 6 का ओपन बुक एग्जाम है हमारे पास, तो और जैसे आई थिंक लॉ लॉ में अब हमारे पास ओपन बुक है, या सो हमारे पास ओपन बुक है, सो या सो लेकिन उसके बावजूद भी इट्स इम्पोर्टेंट टू रिवाइज थिंग्स, और कुछ गैप अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको बड़ा हेल्प होता है। सो या इस अब हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सी बात, सर दिसंबर कुछ क्वेश्चन हमारे पास एक और भी है सर। दिसंबर 2022 अटेम्प्ट है, हैवंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग येट, सो 2 पेपर्स की तैयारी है, हो सकेगी अब? डिपेंड करता है 2 पेपर हैं कौन से जो आप लेना चाहते हैं, 1 और 6 अगर आपके पास हैं। दिसंबर 2022 में अटेम्प्ट है, देखें 2 पेपर 6 महीने में इजीली कवर हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप 6 को भी देखें और 1 को भी देखें। 1 इज मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेस्ड, ठीक है, 6 इज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल से मुराद ये है कि नैरेटिव फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है, तो यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली 1 और 6 में। 1 को अगर मैं थोड़ी सी अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मैंने 6 के बारे में बताया था कि 6 का वर्कलोड और नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे, मैं 1 के बारे में बता के बहुत क्विकली, एंड देन आई विल मूव आस्क सर मुजम्मिल टू एक्सप्लेन अबाउट 2 and 5 वेरी ब्रीफली। 6 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं बताऊं चैलेंजेस 1 के बारे में, जो C5 1 है उसके बारे में। C5 1 में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो होता है, ये होता है कि 2 तरह के आमतौर पर स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि जिनको कंफर्ट मिलता है पास पेपर्स करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है, और वो स्टूडेंट होता है दूसरा जिसको कंफर्ट मिलता है स्टैंडर्ड्स को पढ़ के, और स्टैंडर्ड्स के पढ़े बगैर जो है ना उसको चैन और सुकून नहीं मिलता। और ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रह जाता है एग्जाम के अंदर। जो स्टैंडर्ड्स पे फोकस कर रहा होता है स्टूडेंट और वहां से कंफर्ट लेता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही होती है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर अच्छा फोकस हो पाता है, ठीक है, यानी पहले टाइम में अगर आपको क्लियर करना है तो या तो आप स्टैंडर्ड फोकस होते हैं तो आप स्टैंडर्ड पे ज्यादा टाइम लगा के वहां से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बट स्टैंडर्ड्स पे अंडरस्टैंडिंग लेने से आपको आपकी जो यानी जो आपका एक्यूमेन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो इम्प्रूव नहीं होता।
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पास्ट पेपर्स की, नंबर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की। तो जो स्टैंडर्ड वाला बच्चा होता है उसका मसला क्या होता है कि वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होता है बट प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के अंदर वीक होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो कि प्रैक्टिस से कंफर्ट लेता है वो पहली अटेम्प्ट के अंदर एटलीस्ट प्रैक्टिकली क्वेश्चन वाइज जो है स्ट्रांग होता है बट कंसेप्चुअली वीक होता है, ठीक है ना। ये मसला होता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जहां पे टाइम लिमिटेड है और दोनों में से किसी एक जगह पर ही प्रैक्टिकली फोकस हो पाता है। व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इन दोनों अप्रोचेस को ब्लेंड करने की कोशिश की है कि जहां पे हम स्टैंडर्ड्स के साथ अगर मैं अपनी अप्रोच के बारे में बताऊं आपको तो हम स्टैंडर्ड्स दरमियान में CFAP 6 में भी खोलते हैं और CFAP 1 में भी खोलते हैं। CFAP 1 के अंदर भी you will find me referring to standards, opening standards in our videos, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी स्टैंडर्ड खोलें, अंडरलाइन करें और इसका मतलब ये है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि स्टैंडर्ड के हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए स्टैंडर्ड के साथ रेलेवेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने जो कैफ जो इससे पहले कैफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 है उसमें स्टैंडर्ड्स कितने लोगों ने यूज किए हैं? या कितने लोगों ने यूज किए हैं? जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से पढ़ा हो, ना कि किसी समरी वगैरह से पढ़ा हो, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से पढ़ा हो। तो जो लोग स्टैंडर्ड से तैयारी कर रहे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी वीक होती है ना, उनका मसला ये होता है कि उनकी पहली अटेम्प्ट के अंदर अगर कोई ऐसा पेपर आता है जो कि ज्यादा प्रैक्टिस फोकस होता है जहां पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल जो नंबर्स वगैरह बहुत तेजी से बनाने होते हैं, तो वहां पे वो जो है ना उसका पेपर अच्छा नहीं होता होता, ठीक है। वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर सवाल इस तरह के आ जाते हैं, ज्यादातर पेपर इस तरह का बनता है जहां पे कंसेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है, किसी ऐसे पैराग्राफ के कोने से उठा लिया कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर पूरा 12 मार्क का सवाल बना दिया, तो वो वाला बच्चा जो प्रैक्टिस वाला बच्चा होगा वो वहां से फंसेगा। अब हमने क्या किया है कि हमारी इस अप्रोच के अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत कराए हैं और हमने स्टैंडर्ड्स को भी यूज किया है। एंड वी ट्राई टू स्क्वीज आवर कोर्स, जो हमने स्क्वीज किया है कंप्लीट कोर्स जो हमने कर रहे होते हैं वो हमने तकरीबन कोई 100 आवर्स का 115 आवर्स का कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ लाइव सेशंस के अंदर 10 आवर्स हम कर रहे होते हैं, बल्कि इनफैक्ट नाउ दे आर 10 to 20 आवर्स लाइव होता है इसकी, और इसमें हम रीसेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, ठीक है जी। देन यू अगेन हैव 6 मॉक एग्जाम्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वही आपके पास होगा फॉर योर क्वेरीज। लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो हम कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस किट्स इसी तरीके से आपके पास होंगी, मैनुअल भी होगा, मैनुअल में आपके पास समरीज भी होंगी, एंड यू विल गेट हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ, ठीक है, दोनों आपके पास होंगी। एंड एग्जैक्टली उसी एक्सपीरियंस या उसी तरीके से आपने उसको पढ़ना होगा जैसे आपके पास किताब खुली हुई है सामने आपके, ठीक है। आपके पास लैपटॉप में मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, जहां पे मैं कहूंगा अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करेंगे, जहां पे मैं कहूंगा अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट करें, फिर देन यू वॉच माय वीडियो, देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट। तो ये तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए उसी अंदाज में हो रही होंगी जैसे कि हम ऑनलाइन के लिए ही पढ़ा रहे हैं। पेपर की कॉम्पोजिशन हम क्विकली देख लेते हैं सिलेबस से, जो मैं CFAP 1 का मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है जी। CFAP 1 में वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज कंसोलिडेशन। फिर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये रिवाइज हुआ है पिछले 1 साल में कि हमारे पास अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अलग से एरिया है 30 से 35 मार्क का। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें आपके पास मार्क्स, और IFRS 9 इज अ कंप्लीटली होल न्यू वर्ल्ड। IFRS 9 I study 2। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी 25-30 मार्क के आते हैं। स्पेशलाइज एरियाज, ये कुछ हमारी एंटिटीज हैं जिनके सेपरेट, फॉर एग्जांपल वो हैं क्या कहते हैं फॉर्मेट्स हैं, जैसे बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये वो है। एंड देन यू हैव कोड ऑफ एथिक्स फॉर बिजनेस अकाउंट, यानी जो अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारे एथिक्स का वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐड हुआ है।
तो ये हमारा एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैं क्वांटम आपको बताऊं, अगर FR2 आप लोगों ने आई एम श्योर अटेम्प्ट किया होगा। FR2 जो है, अगर उसमें 200 कॉन्सेप्ट्स होता है ना, CFAP1 में 1700 कॉन्सेप्ट्स है। सो यू कैन सी ऑल ऑफ अ सडन द क्वांटम है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज कोर्स, ठीक है, जिसको हमने 100 घंटे के अंदर, यानी वो इफेक्टिवली अगर आप क्लासरूम में ले रहे हो तो ये 200 घंटे, 100-125 घंटे में अगर हमने इसको किया है, तो ये इफेक्टिवली क्लासरूम के अंदर, फिजिकल क्लासरूम के अंदर ये 200-250 घंटे का कोर्स है कम से कम, 250, यानी इजीली आप मल्टीप्लाई में 2 कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम सेव होगा एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट with good high quality sound and audio and video, so it will help you. So with this I conclude my part on CFAP 1 and 6 and also Q&A on paper combination. दरमियान में if you have any questions I am also here. इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, बल्कि इनफैक्ट आई विल स्पीक एट द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे अगर हमें कोई एडवाइसेस आपको देनी हो या कोई क्वेश्चंस हो। मुजम्मिल, यू इफ यू प्लीज गो अहेड विद योर CFAP 2 and 5। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा एडमिन, मुझे राइट्स देते हैं स्क्रीन शेयर के। जी आपको मिल गया वैसा? विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी बिल्कुल विजिबल है। All right. So the subjects that I'm going to be looking at TSB includes like CFAP 2 and CFAP 5. ठीक है, CAF के ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वहाँ कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, अभी तो हम बात करें 2 सब्जेक्ट जो CFAP के हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट लॉस के ऊपर मैं आपके साथ जो डिस्कशन रहेगी और टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बात रहेगी। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर सर हसनैन ने जो काफी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कशन भी किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जनरली जो चैलेंजेस CFAP के अंदर आपके पास जो आप फेस कर रहे होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो है वो एक चैलेंज होता है कि अलॉन्ग विद फर्म या जो आपके अगर इंडस्ट्री में आर्टिकल्स हैं उसके साथ साथ आपकी जो क्लासेस हैं उसको मैनेज करना। ठीक है, अब मतलब डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर कौन है, आपकी फर्म कौन है, आपका क्लाइंट क्या है। ठीक है, आपको क्या फिजिकल क्लासेस की परमिशन मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, फिर कम्यूट करना, फिर वापस से अगर लेट सिटिंग्स चल रही है तो वापस फर्म आना। तो इन सारे अगर हम इश्यूज की बात करें तो रेकमेंडेड यही होता है। ठीक है, अगेन ये बात इसको इस तरह परसेप्शन ना लिया जाए कि क्योंकि जो है वो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम ये बात करें। वैसे भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक दफा करके भी फिजिकल लेके भी देख सकते हैं कि कितना आप जो है वो CFAP के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ठीक है, क्योंकि CFAP के अंदर जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है वो आपके टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना टाइम आप अपनी स्टडीज के ऊपर स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा टाइम आपके पास होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जितना कम, क्योंकि यूजुअली एक टेंडेंसी ये रही है CFAP की। ठीक है, और जब आप फर्म में जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने सीनियर से पूछते हैं कि बताएं भाई हम क्या करें। तो देखें, एक बात याद रखें कि ये जो आपकी सीनियर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे गाइडेंस भी देंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे होंगे कि जिनके काफी अटेम्प्ट्स हो गए, पेपर नहीं निकले, कुछ जो है वो डिमोटिवेटेड होंगे। तो आपने अपना जो मोमेंटम है जो आप कैफ से लेके आ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपने देखिए हर एक की अपनी स्ट्रगल होती है। ठीक है, आप किसी को मतलब यूं ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते कि भाई अगर उसने ये काम किया तो मैं भी ये काम करूं। हाँ, अगर उसका मेरिट आया है, अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास हुआ है तो ऑब्वियसली आपको उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन चीजों में फॉलो करना चाहिए कि जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ऐसा है कि जो 1 महीने में पास करके मेरिट लेके आ जाता है, तो भाई हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं भी ऐसा नहीं था, आप श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, तो एवरेज की अगर हम बात करें, ठीक है, मेरिटोरियस की हम बात ना करें, तो उसमें ये होता है कि आपको फिर एक हार्ड वर्किंग जो है वो एक एलिमेंट आपका काउंट हो रहा होता है। तो अगर जितना ज्यादा आप जो है वो फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, शुरू से अगर आप अपनी चीजों को प्लान आउट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि CFAP के अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत कम पूछता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा टेस्ट करता है। ठीक है, तो जितना आपकी एक्सपोजर उन लोगों के साथ होगा, ठीक है, एक तो आप खुद सीख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप फर्म के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आप वहाँ खुद सीख रहे हैं, फिर इसके साथ साथ जो मतलब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप बैठ रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो आपको बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपकी अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कंसल्टेंसी के अंदर
क्या चल रहा है, टैक्सेशन के अंदर, कंसल्टेंसी में क्या चल रहा है, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो पेयर्स हैं, जो इन फील्ड हैं, ठीक है, तो वो आपको जब, क्योंकि देखें एग्जामिनर आपको बात कर रहा है प्रैक्टिकल अप्रोचेस की, तो अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिपेयर होना मैंडेटरी है। अच्छा, फिर एवरीथिंग कनेक्टेड टू पासिंग ऑफ पेपर, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है सीफैप के अंदर कि आपके माइंड में हर वक्त जो है वो मल्टीपल चीजें आ रही होती है कि भाई अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरा पेपर पास होगा तो मैं इतनी स्टाइपेंड बढ़ेगी, अगर मेरा पेपर पास होगा तो इतनी जल्दी जो है वो ये काम हो जाएगा, इतनी जल्दी मैं जो है जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेटेड कह लें आपकी आपकी हर चीज जो है वो कनेक्टेड है आपके पासिंग ऑफ पेपर से। अब बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे अपने फर्म्स के अंदर भी और सीनियर्स भी के आर्टिकल्स एंड हो गए लेकिन पेपर पास नहीं हो रहे। तो आप देखें बहुत सारों की इसमें अपनी मिस्टेक होती है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने माइंड में एक बात रखता था कि यार अगर एक भी बंदा अगर ये काम कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर एक भी नहीं कर सकता तो शायद फिर हम कहेंगे यार ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक भी कर सकता है उसको, तो भाई मैं उस कैटेगरी में क्यों नहीं फॉल करता कि मैं अपने आप को उसी जो है उसमें लेके आऊँ कि मैं भी वो चीज कर सकूँ, अचीव कर सकूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको जो है वो ट्राई करना चाहिए फोकस होने के साथ, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज आपकी लिंक, घर वाले आपको प्रेशर करेंगे भाई जल्दी से क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, आपकी फिर शादी भी करवानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारे चैलेंजेस। तो अगेन हमने कहा कि भाई ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो पेपर की स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए कि आप किस तरह से लेके चल रहे हैं चीजों को। फिर फोकस लॉस समटाइम्स, ठीक है, आप सीनियर से मिलेंगे, पेपर पास नहीं हुए, कहेंगे यार चलो यार एसीसीए कर लो, यार चलो यार सीएफए कर लो, यार ये कर लेते हैं। अच्छा भाई, जो जिस माइंडसेट के साथ आपको एडमिशन दिलाया था आपके पेरेंट्स ने सीए के अंदर, वो तो ये था कि आपको सीए क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। अगेन मैं किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल तक आपके पेपर नहीं निकले तो भाई कर लेना चाहिए, कुछ कुछ और सोचें आप। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक अटेम्प्ट में अगर आपका पेपर नहीं निकल रहा या 2 अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकल रहा, तो आप इमीडिएटली ये डिसीजन ले लें अपने सीनियर्स की बातों के ऊपर कि भाई मैं जो है वो एसीसी चला जाता हूँ, कम से कम मेरे पास एक क्वालिफिकेशन तो होगी। देखें जिस दिन आप खुद जो है वो इस चीज को अपने माइंड में लेके आ गए कि आप फॉर एग्जांपल होता है ना, एक थॉट लेके आ गए कि मैं हार गया, ठीक है, डिफीट खुद आपने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर कोई जितवा थोड़ी सकता आपको, ठीक है। अगर आप खुद ये बात समझ लें कि भाई मैं हारा हुआ बंदा हूँ, तो फिर आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने कभी भी ये चीज नहीं सोचनी है कि आप जो है वो नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। बहुत सारे जितने टीचर्स हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास हुआ, मैं कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाँ, एक अटेम्प्ट में अगर रुका तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, ठीक है। अगर कोई एक आध पेपर ऐसा था, जैसे बाय द वे मेरा ऑडिट का पेपर ही सीफैप का ऐसा था जो 3rd अटेम्प्ट में निकला था, ठीक है, लेकिन उसी की वजह से मेरी 6 महीने क्वालिफिकेशन लेट हुई थी, लेकिन निकल गया फिर, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप फोकस रहेंगे ना, यहाँ वहां नहीं देखेंगे कि भाई मैं एसीसीए कर लूँ, मैं सीएफए कर लूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, तो आई एम श्योर कि आप में से सारे बच्चे जो है वो पेपर पास कर सकते हैं। अच्छा, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन अगेन एक ट्रबलसम जो एक प्रॉब्लमैटिक जो एक एरिया है जिसके ऊपर सर असलैन ने काफी डिटेल में बात की, ठीक है। तो मैं उनकी बात को सेकंड भी करता हूँ और साथ में एक बात कह देता हूँ कि देखें पॉइंट ये है कि जो चीजें, जो सब्जेक्ट्स आपके टाइम लेते हैं, मेरा अपना सजेशन ये है कि उसको आपने उसके हिसाब से टाइम एलोकेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई हम्बल व्यू, जैसे एफएफआर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ है, ठीक है। इन माय व्यू ये, चलें एफएफआर जो सर ने बात की, मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि लॉ के ऊपर, लॉ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब लॉ के अंदर मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप इसको कम से कम, अगर आपके पास अटेम्प्ट आपकी 1 साल दूर है या 1.5 साल दूर है, या आपके पास इन बिटवीन आपने प्लान किया हुआ है कि मैं 1 साल बाद दूंगा, तो आप लॉ उठाना चाहिए आपको, ठीक है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपके पास ये सब्जेक्ट की लेंथ इतनी है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसकी लेंथ इतनी है कि आपको करते करते करते, फिर रिटेंशन करते हुए, फिर रिवीजन करते हुए, आपको प्रैक्टिस करते हुए उतना टाइम लग जाएगा कि जो है वो आपको 6 मंथ्स के अंदर, और 6 मंथ में भी इफेक्टिवली 6 महीने कहाँ होते हैं, आपको भी आइडिया है इस चीज का कि 6 महीने थोड़ी होते हैं, फिर वो रिजल्ट से अगर आप काउंट करें तो 3-4-5 महीने बचते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर हम लॉ की बात करें तो उसको आप एटलीस्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन दें, पहली दफा में उठाना है, ठीक है, तो 1 साल का टाइम रखें माइंड में कि 1 साल के बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अगर टैक्स की बात करूं मैं, तो टैक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इतना क्योंकि ज्यादा वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, और अकाउंटेंट्स की एज एन अकाउंटेंट हमारी अप्रोच भी होती है कि हम प्रैक्टिस से ज्यादा कनेक्टेड भी होते हैं, टच भी होते हैं, मजा भी आ रहा होता है, तो वो मैनेजेबल होता है और वो लोग करते आए हैं हिस्टोरिकली भी। अगर आप देखेंगे तो जो ये जो टैक्स का पेपर है एडवांस टैक्सेशन का, वो पहली अटेम्प्ट के अंदर 6 महीने की अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ चैलेंज
देगा आपको कि अगर आप उसको 6 महीने के उस पर एलोकेट करेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, इन माय व्यू। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लॉ की बात करें, पहली अटेम्प्ट है, तो लॉ आपको पिक करना इसलिए चाहिए कि आपके पास ज्यादा टाइम है, ठीक है। 1.5 साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है, तो आपको उसको पिक करना चाहिए, ठीक है। हाँ, टैक्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल सेकंड अटेम्प्ट के लिए बात कर रहे हैं, अभी आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद अटेम्प्ट है, तो आप इमीडिएटली जो है वो टैक्स जो है वो उठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेजेबल है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें तो सिलेबस की ग्रेड की बात करें, तो आपका जो एरियाज हैं वो डिफरेंट उसमें डिवाइडेड है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की बात करें, फिर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन की बात करें, स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज हैं और अदर रेलेवेंट लॉज हैं, ठीक है। तो इसको क्विकली अगर मैं आपके साथ सिलेबस भी दिखा दूं आपको, ठीक है, तो ये इसकी वेटेज है, ठीक है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस आपके पास ये है जिसमें कंपनी लॉ के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको सिलेबस में। फिर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के अंदर ये सारी चीजें, स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ कम मार्क्स का है, अदर रेलेवेंट लॉस आपके ज्यादा मार्क्स के हैं। यानी इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो आपके पास सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस ए और डी, ठीक है, ये स्कोरिंग एरिया है। और ए कंपैरेटिवली, ए और बी कह लें कंपैरेटिवली इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। इसके अगर मैं आपको क्विकली अगर मैं आपको इसके टॉपिक्स दिखा दूं, ठीक है, तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में कंपनीज एक्ट है, इससे रेलेवेंट शेड्यूल, फिर कंपनीज पोस्टल बैलेट जो रेगुलेशंस है वो इसके अंदर है कि मीटिंग्स के अंदर अगर हम बात करें, फिर कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन, ये भी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से पर्टेन करता है। फिर ये आपके सेक्शन 199 200 से पर्टेन करता है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग। फिर पीएफ रिलेटेड जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड से रिलेटेड बात है। तो आप देखते जाएं तो आपका ये, आप सिर्फ लिस्ट चेक करें, इतनी ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है इसकी, ठीक है। फिर मीडिएशन के अंदर इसके कुछ चैप्टर्स हैं, ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, पार्ट भी छोटा है, इसीलिए 10-15 मार्क्स का है। फिर स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ, ये इटसेल्फ एनबीएफसी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है। फिर इसमें इंश्योरेंस और बैंकिंग रखा हुआ है, ठीक है, ये भी 10 से 15 मार्क्स का एरिया है। और फिर लास्टली आपके पास फेरा की चीजें हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट है, एएमएल है, फिर सीसीजी है, ठीक है, सीसीजी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। पेमेंट सिस्टम, ये भी छोटा सा लॉ है। फिर आईकैप कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, ये वो है कि जो यूजुअली आपके साथ ऑडिट के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। तो आप इसकी लेंथ जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि कितना इसका लेंथ है। ये सिर्फ अभी देखने में 2-4 पेज का है, ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये मतलब आप यकीन करेंगे बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसकी आपको जो है वो नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी अगेन। तो इसलिए इस बेसिस के ऊपर मेरा अपना रिकमेंडेशन ये है कि आप एक साल बाद जो है वो जब भी प्लान करें लॉ को, अगर आप फ्रेश कैफ क्वालिफाइड है तो अगेन आपकी अटेम्प्ट तो फिर 1 या 1.5 साल बाद ही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पिक करना चाहिए। अच्छा, और उसका एक एडवांटेज जो मैंने अभी ड्यूरिंग डिस्कशन भी एक बात कह दी कि अगर आप रिसेंटली लॉ पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको एक एडवांटेज ये हो जाता है कि ऑल्दो उसका और इसका कोई मैच ही नहीं है, शायद 15-20 मार्क्स से भी कम का आपका कैफ था ऊपर, अगर मैं सी फैप से कंपैरिजन करूं, लेकिन फिर भी आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आपके मतलब माइंडसेट के अंदर होता है कि यार क्या बैकग्राउंड क्या था, कैफ के अंदर क्या चीजें आपने पढ़ी थी, तो आपको उसका एक एडवांटेज मिल सकता है। अच्छा, सी फैप 5 की बात करें, इंटरेस्टिंग, मेरा तो अपना फेवरेट एरिया वैसे भी है, ठीक है, प्रैक्टिस की वजह से भी और सारी चीजों की वजह से, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है, आपका टैक्सेशन का एरिया जिसमें इनकम टैक्स सबसे ज्यादा मार्क्स का है, फिर सेल्स टैक्स का, और फिर एथिक्स है। एथिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, थ्योरी है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं वैसे अगर बात करूं, इसमें एडवांस प्रोविजन जरूर है, ठीक है, इसमें एडवांस वर्किंग जरूर है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कैफ का टैक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो सी फैप को चूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हमें टैक्स में बहुत, अभी मेरी कल रात में इस्लामाबाद में एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो मुझे टैक्स में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँ। तो अगेन अगर आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो एक अलग चीज है, उसमें तो आपको मजा ना आते हुए, बोरिंग होते हुए भी मजा आएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को एक जमाने में आईटी का सब्जेक्ट होता था, उसमें इंटरेस्ट होता था, लेकिन मेजोरिटी जो है वो फेडअप होती थी कि यार ये आईटी का सब्जेक्ट क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर आपके है कि किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इनकम टैक्स 50 से 60 जो है वो आपका उसका है, और 30 से 45 की जो वेटेज सेल्स टैक्स और इसकी और ये। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि आई कैप कह रहा है कि 140 से 155 आवर्स टीचिंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। देखिए, आई कैप ऐसे ही नहीं कह रहा, अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, ठीक है,
तो मेरे मतलब कहीं भी आप चले जाएं तो आपके पास मल्टीपल बुक्स होंगी कि जो अवेलेबल होती हैं। अब भाई अगर एक टैक्स की एक टॉपिक के ऊपर ही अगर हम बात कर लें, इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर लें, तो इसकी मल्टीपल बुक्स हैं जो अवेलेबल है। लेकिन भाई क्या मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है? ठीक है, मुझे पीएचडी नहीं करना उस सब्जेक्ट के अंदर, मुझे पेपर पास करना है प्राइमरीली। जो मेरा बेसिक पर्पज है वो क्या है कि पेपर पास होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे उससे एक्सपर्टीज मिल रही है बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पेपर पास ना हो और मुझे सिर्फ नॉलेज मिल जाए तो ऐसे पेपर, ऐसी नॉलेज का क्या फायदा होगा? ठीक है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि मेरा जो टीचिंग आवर्स है आईकैप ऐसे ही नहीं दे रहा। ठीक है, आईकैप इस चीज को रखते हुए दे रहा है कि आपके पास ये सब्जेक्ट आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। और जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स होंगे, जितने ज्यादा आप इसको देखें, करने को तो 1000 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या आपका ये चीज मैनेजेबल होगी आपके लिए? प्रैक्टिकल है कि फर्म के साथ 1000 घंटे आप कैसे मैनेज करेंगे, 400-500 घंटे कैसे मैनेज करेंगे? तो आईकैप ने इसी माइंडसेट के साथ 150 घंटे यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, 150 नहीं तो 250 हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या है कि इससे ऊपर ना जाए ताकि आपके पास प्रैक्टिस का टाइम हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस का टाइम नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली आपकी किसी भी क्लासेस का फायदा नहीं होगा, फिर अगली अटेम्प्ट में वो क्लासेस फिर इंशाल्लाह आपको काम आ रही होंगी। अच्छा, हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस कोर्स, हम किस तरह से लेके चलेंगे? तो देखिए, हम बात करेंगे समरीज की। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किस तरह से जो है वो समरीज के थ्रू चीजों को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि समरीज, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो समरीज किस तरह की होंगी। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत पॉइंट्स टू बी नोटेड के अंदर हमने समराइज कर दिया है कि भाई किस तरह से आपका कोई भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट्स टू बी नोटेड पढ़ लें तो इसका मतलब ये कि इजीली आप जो है वो इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स की भी बात की है, बहुत सारी कुछ नॉलेजेबल बात भी की है, सर्कुलर्स की भी कुछ बात की है। तो इंटरेस्टिंग एरिया है। ठीक है, ये इस मतलब आप समझें कि आप अगर किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में, तो आपको इसमें हेल्प आउट हो सकता है। तो अगेन, इसमें पॉइंट्स टू बी नोटेड के अंदर तो समरीज की फॉर्म के अंदर हम कोशिश करेंगे कि चीजों को आपके साथ कवर करें। अच्छा, इसी तरह अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें, ठीक है, तो हम किस तरह से चलेंगे? देखेंगे आपके सामने समरीज आ रही है, हम समराइज, क्योंकि देखें पॉइंट ये है कि अगर अब ये सीसीजी है, ये 4 पेज के ऊपर इफेक्टिवली जो है वो आपका आ रहा है, यही अगर आप लॉ से उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 35-40 पेजेस है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप जो है वो चीजों को बढ़ाते जाएं, कम चीजें करें। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूँ, पता नहीं मेरे साथ दूसरे जो टीचर्स हैं उसको सेकंड करते हैं या नहीं करते, मैं ये समझता हूँ कि भाई आप 5 क्वेश्चंस करें लेकिन 3-4 दफा कर लें, बजाय इसके कि आप 15 क्वेश्चंस करें। ठीक है, और जो है वो उसको एक एक दफा करें या देखें ही नहीं, सिर्फ उसको ऑडिट कर लें। होता है ना, आप कैलकुलेटर लेके बैठे, आपने ऑडिट कर लिया उसका, भाई ये सही लग रहा है नहीं लग रहा। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि देखिए, आईकैप के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर नई चीज जरूर होती है। ठीक है, लेकिन कितनी कितनी परसेंट वेरी करती है? 20%, 25%, ये मैक्स बता रहा हूँ आपको। यूजुअली क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, नाम चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, चीजें वही पूछ रहा होता है, डिफरेंट अंदाज से पूछ रहा होता है। तो जितना आप अपने आप को इम्यून करेंगे, जितना आप अपने आप को फेमिलियर करेंगे आईकैप के क्वेश्चंस के साथ, उतना ज्यादा आपको चीजों के अंदर जो है वो, हाँ अगर टाइम है आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो भाई आप फिर 500 नहीं 5000 क्वेश्चन करें आप, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर विद इन ये स्मार्ट मतलब आपका मूव यही होगा कि कम क्वेश्चन करें और उसको ज्यादा दफा प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैंने भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही टेक्स्ट पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मैंने अपना लॉ पास किया, दोनों मैंने सब्जेक्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास किए थे, खुद से पढ़ के पास किए थे बाय द वे। ठीक है, तो अगेन उसमें मैंने क्या चीज की, मैंने भी यही सारी चीजें देखी थी कि भाई आप कम चीजें करो लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स करो, इतना करो कि स्ट्रांग हो जाए वो चीज। ठीक है, अच्छा, फिर बेयर एक्ट के ऊपर हम जो है वो ऑफ एंड ऑन डिस्कशन रहेगी, क्योंकि आपने बेयर एक्ट यूज भी करना है, और बेयर एक्ट हम समरीज के अंदर इस तरह से कवर कर रहे होंगे जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे। ठीक है, ये जो है वो आपको फिर उस वक्त डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, कि आपको अंदाजा होगा कि भाई इस सेक्शन के अंदर या इस क्लॉज के अंदर, इस सब सेक्शन के अंदर क्या चीजें कवर्ड हैं। फाइनली प्रैक्टिस, ठीक है, हम कोशिश करेंगे क्लास के अंदर ये चीजें रिटेन भी हो जाएं, और क्लास में भी जो भी आपके साथ लेक्चर शेयर किए जाते हैं उसी के अंदर ही हम आप सारे के साथ प्रैक्टिस भी करें, समरीज भी करें, और रिटेंशन भी साथ साथ हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, अब होगा क्या, हम किस तरह से आपको असिस्ट करेंगे? कुछ चीजें सर हसनैन ने आपके साथ शेयर की, उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हम आपको एक्सेस देंगे टीएसबी के पोर्टल का। इसी तरह से लर्निंग और रिटेंशन जो है वो हमारी फोकस होगा कि क्लास के अंदर आपकी हो जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि भाई लर्निंग की क्या जरूरत है, कि अगर आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, आप कोर्सेज हैं, जैसे मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग किया यूके से, वो है आपके सीएसएस, अगर आप देखें वो है ओपन बुक। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके और भी अगर आपने कभी ओपन बुक दिया हो तो आपको अंदाजा होगा कि बुक जो है ना वो सिर्फ आपके बराबर में रखी होती है, वो कॉन्फिडेंस दे रही होती है कि हाँ अगर कहीं फंसोगे तो ये काम आएगी। लेकिन अगर जो बच्चा बुक खोल के बैठ जाए,
ठीक है, जो सॉल्व ही बुक से मार्क कर रहा हो तो उसका पेपर पास होना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये मैं आपको मतलब बहुत ही उससे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि अगर आप तैयारी ना करके जाएं, आप कहें यार बुक किताब काफी है, ठीक है, तो किताब तो आपके बराबर में पड़ी है, ठीक है, तो फिर उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके लिए आप उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, किताब काफी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो अगर करना है तो उससे पहले आपको चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा, उस बुक को थॉरोली रिवाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर कमांड लेनी पड़ेगी, तो आपकी चीजें जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ, हाँ कहीं फंसते हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं आ रहा तो वहां आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं बुक खोल के देख सकता हूँ, वो भी पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लिखी है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, फिर समरीज आपके साथ होंगी, बेरेक्ट्स होगा, कोर्स हम ऑब्वियसली यूजुअल ड्यूरेशन जितना भी होता है, ज़ाहिर क्लास का एनवायरनमेंट एक डिफरेंट होता है, उसमें कम्यूट करना, नमाज का ब्रेक लेना, भूख लग रही है, जो है वो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बातें करना है, वो सारी जो वेस्टेज होता है वो आपका नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका क्लास होगा। ठीक है, और आप जब चाहें जिस वक्त चाहें आप क्लास जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, फिर इस पे हम बात करेंगे हाउ टू यूज बुक्स इफेक्टिवली इन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके ऊपर हमारी बात रहेगी कि ऑर्डिनेंस को, बेरेक्ट को किस तरह से आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक द रिविजन इजियर कंसिडरिंग लॉ इज लेंथी सब्जेक्ट। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया ना कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सरदील यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जैसे हमारा BMBS होता था तो उस वक्त आप यकीन करें कि मैंने क्या किया था, मैंने एक ब्लंडर किया था। मैं इस सब्जेक्ट में मैं एडमिट करता हूँ कि मैं पहली अटेम्प्ट में जो है मैं फेल हुआ था। अच्छा, उसमें क्या हुआ था कि मैंने बहुत सारी बुक्स रखी थी अपने पास। ठीक है, कोई 4-5 बुक्स मैंने रखी थी और मैंने कहा था यार पढ़ेंगे, इतनी सारी बुक्स है, और अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट थी मेरी CA की, तो मैंने कहा यार मैं बहुत सारी बुक से पढ़ूंगा। ठीक है, मैंने किया, ये मजा आया मुझे पढ़ने में, मैंने पढ़ा। अच्छा, मजा तब आया कि जब पेपर नेक्स्ट डे था, मैं एक पेपर दे के आया, उस वक्त जब मैं 4-5 बुक्स लेके बैठा, मैंने कहा या अल्लाह ये होगा कैसे, ये 5 बुक्स की बुक्स मैं करूंगा कैसे। फिर मुझे मुझे उस वक्त जो है वो अपने एक सीनियर की बात, एक अच्छा सीनियर था, यूजुअली कम मिलते हैं इस तरह के सीनियर, उसकी बात मुझे याद आई। उसने कहा था कि यार तुम कर तो लोगे लेकिन रिवाइज कैसे करोगे लास्ट डे पे। तो मैंने उसको कहा यार तुम्हें क्या पता, मैं कर लूंगा। लेकिन जब वो दिन आया तो मैंने कहा यार ये तो भाई उसने बात बिल्कुल सही की थी और ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक चैप्टर या 2 चैप्टर रिवाइज करते करते मेरा कोई, आप समझे, कोई 4-5 घंटे गुजर गए थे। ठीक है, और आगे जो है वो 3-4 घंटे बाद पेपर था मेरा। ठीक है, ज़ाहिर इतना ही टाइम होता है आपके, आप आते हैं पेपर दे के फिर सोते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो गया, ये हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर मैंने वहां से रियलाइज किया, मैंने कहा यार इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो चीजें होनी चाहिए कि जो लास्ट डे रिवीजन को आपको कन्वीनियंट बनाए, ना कि डिफिकल्ट बनाए। मैं, बुक्स तो बहुत सारी मिलती है मार्केट में भी, ऑनलाइन भी बहुत सारी, लेकिन करोगे क्या उन बुक्स का। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करें तो भाई पूरी लाइब्रेरी बनाएं, आप सारी चीजें अपने पास रखें, लेकिन अगर आप पेपर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसको जितना कट डाउन करेंगे, जितना रिड्यूस रखेंगे, उतना आपके लिए एडवांटेजेस वो प्रूव होगा। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होगी कि भाई अभी तो बजट भी आने वाला है, टैक्स का लॉ चेंज होगा, हो सकता है कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में भी चेंजेस आ जाए। तो देखिए, जहां जो चेंजेस आएगी आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जहां जो चेंजेस आएंगी वहां वो हम आपके साथ जो है वो अपडेट करते जाएंगे। चेंजेस ऐसे नहीं आती कि पूरा का पूरा लॉ उठा के चेंज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। स्लाइड्स चेंजेस आती हैं। हाँ, वो चेंजेस पता होना इसलिए जरूरी है कि उसकी वजह से इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है, उसकी वजह से प्रैक्टिस डिफरेंट हो जाती है, वो हम जरूर बताएंगे। लेकिन एज एज अ टीचर, ठीक है, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ ट्रेनर, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इतना कोई नहीं होता चीजें कि आप जो है वो मतलब मटीरियली कुछ डिफरेंट हो जाए। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप कैफ क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, तो आप अपनी ईज के हिसाब से जब भी आप पिक करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें टेंशन नहीं लेना कि बजट आएगा फिर करूंगा। ठीक है भाई, बजट आएगा जून के अंदर, ठीक है, यानी मई के एंड में, जून के अंदर आएगा, फिर 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल होगा, तो 1 जुलाई के बाद फाइनेंस एक्ट आपको क्लियर होगा, तो क्या उसके बाद से आप क्लासेस शुरू करेंगे, तो फिर टाइम कितना बचेगा। ठीक है, तो टैक्स के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली आपसे ये बात करूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि दिसंबर में अटेम्प्ट देनी चाहिए, तो आज वो दिन है, या जब भी आप समझते हैं कि 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। इतनी चेंजेस नहीं आती, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ चेंज होते हैं, ठीक है, वो तो चेंज कभी होते ही नहीं। हाँ, चेंजेस आती हैं रेट्स में और वो सारी चीजों में, तो वो उतना मुश्किल भी नहीं है, वो हम आपको बता भी देंगे। अच्छा, फिर सेशंस हम आपके साथ रखेंगे Q&A और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। ये लाइव सेशंस आपके साथ होंगे, और जितना हम समझते होंगे कि आपको नीड है Q&A के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए तो कोई रूम, मतलब आपके पास कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जितना ज्यादा चाहें वो इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने आप को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। एक तो ये कि अपनी कंसंट्रेशन लूज ना करें। फर्म के अंदर टाइम मिलता है, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं कि जिन्होंने फर्म के अंदर 2-2 3-3 बजे जब हम नाइट लेट सेटिंग्स कर रहे होते थे, तो साइड पे बैठ के CFA भी कर लिया भाई। कुछ ऐसे भी लोग थे CA के साथ साथ या दूसरे ACCA के साथ साथ,
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे क्वालिफिकेशंस पे जाएं या ना जाएं, वो एक अलग डिस्कशन है, कोई चाहेगा तो उसके साथ अलग से बात हो जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने जो भी आप सुन रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि यार यहाँ अभी जो है वो क्या फर्म के अंदर होता है ना, आई एम श्योर कि सब जगह इस तरह होता है, कराची में तो जाहिर है हमने बहुत देखा है इस तरह का कि भाई अब टीम बैठी है कि भाई क्या ऑर्डर करना है, इस पे डिसीजन हो रहा है, इस पे पूरी कमेटी बैठी हुई है कि भाई आज क्या लंच में ऑर्डर करना है, आज क्या लेट सिटिंग डिनर में क्या ऑर्डर करना है, 1 घंटा निकालिए। भाई आप अपना 1 घंटा नहीं, आपके पास किट है, आपको पता है कितना टाइम का कितना लेक्चर है, आप जाएं साइड पे, 15-20 मिनट का एक क्लिप सुने, आप अपनी नॉलेज में वो करें, आपने इसका मतलब एक क्लास और ले ली, ठीक है। तो इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, जाया नहीं करना टाइम को, ठीक है। ऑलवेज कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए आप सुन रहे हैं, देखिए सुनी सुनाई चीजों के ऊपर बात नहीं होती। ऑडिट के अंदर कहते हैं ना, नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ समरीज शेयर की जाएंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी समरीज खुद भी बना सकते हैं तो भाई सौ बिस्मिल्लाह, बनाइए आप अपनी समरीज खुद से, ठीक है। रिवाइज डेली, डोंट वेट फॉर एंड, ठीक है। अगेन कि ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो सिर्फ मतलब ये सोचें कि मैं आखिर में कर लूंगा, भाई मतलब टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। ये बात याद है ना कि कल तो कभी आती ना, मैं कल से ये कर लूंगा, मैं कल से वो कर लूंगा। मैं अब मुझे मेरे फॉर एग्जाम्पल जो है वो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ कहती है भाई आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कल से कर लूंगा, मैं कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कल से करें तो आज से करें, भाई कल से नहीं आज से करें आप। अच्छा, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपका जो है वो एक और सोल्यूशन है कि आप क्या करें कि प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। टीचर पढ़ा सकता है, समझा सकता है, क्लास में जितना करवा सकता है करवा सकता है, जिसका मेरिट आता है, मेरा ये हमेशा मानना है कि ठीक है टीचर की अपनी एफर्ट होती है, ठीक है, लेकिन जिसका भी मेरिट आता है उसमें उसका अपना बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। ठीक है, आपने एज टीचर हमने बिल्कुल मेहनत की होती है, तो भाई हमने जो फेल हुए उनके ऊपर भी तो मेहनत की थी, लेकिन उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा माइल जाके थोड़ा सा अपनी एफर्ट खुद की थी, ठीक है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, सी फैप में और कैफ में बहुत डिफरेंस है। सी फैप के अंदर, कैफ के अंदर आपको हाथ पकड़ के चलाया जाता था, सी फैप के अंदर आपको खुद से आपको चलना आ गया, अब आपको सिर्फ गाइड किया जाएगा और आपने आगे से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, टीचर से आगे जाना है, ठीक है। एनीवेज, तो अगर आप में से कोई चाहे सेशन के बाद कोई चीज़ डिस्कस करना या कोई बात डिस्कस करना, तो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारी जगहों पे अवेलेबल हूँ। आप चाहें तो पर्सनली जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज हो तो एनीवेज आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू सरती। कंफर्म करिएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कंफर्म करिएगा। सर आपकी आवाज़ लाइट आ रही है। अब बताइएगा मेरी आवाज़ कुछ बेहतर होगी, बेटर? परफेक्ट है, परफेक्ट। चले सर, काइंडली रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है होस्ट बना दीजिएगा ताकि मैं जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकूँ। जो एडमिन है वो मुझे अगर होस्ट बना दें। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं व्हाटएवर यू वांट। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए जनाब, जो मेरी एंड से कंट्रीब्यूशन होगी कि हम लोग जो है वो CFAP 3 पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि CFAP 3 में जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो क्या इश्यूज आते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू रिजॉल्व दीज इश्यूज हैं। CFAP 3 जो है वो मोर और लेस जो है वो BMBS की तरह है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी एडिशंस हैं। मिलता जुलता सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने BMBS में कंटेंट्स पढ़े होते हैं उससे, लेकिन कुछ एडिशंस के साथ। लाइक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि आप एग्जामिनर जो है इसे 5 डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मुलेशन है एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, जिसमें जिसे आप एग्जामिनर कहते हैं कि अराउंड अबाउट 30% जो है वो टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ, यानी IT मैनेजमेंट पे जो है वो एक सेक्शन है जिसका तकरीबन जो है वो 15 नंबर का जो है वो एग्जामिनर के बकौल टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट है जिसमें मार्केटिंग से मुतलिक जो है वो टेस्ट किया जाता है, सप्लाई चेन से मुतलिक टेस्ट किया जाता है, HR से मुतलिक जो है वो टेस्ट किया जाता है। हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और HR मैनेजमेंट है। पहले ये दोनों सेक्शन जो है वो अलग अलग थे, फिर अब जो नई स्कीम आई है उसमें इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। एग्जामिनर कहते हैं कि बने हम जो हैं वो 30% तक जो है वो आपको 30 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन इस पोर्शन में से आएगा। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, 25% तक जो पेपर है वो यहाँ से आएगा। और एथिक्स का जो पोर्शन है, राउंड अबाउट 15 मार्क्स का जो पेपर है
वो आपको इस सेक्शन से आएगा। ये तो जो एग्जामिनर ने हमें ग्रिड दी है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर मैं पास पेपर को एनालाइज करता हूँ, मैं पास पेपर्स को देखता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि एग्जामिनर जो है वो ग्रिड से थोड़ा सा जो है वो वेरी करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें पेपर आता है वो मार्केटिंग वाले सेक्शन से आता है, फिर उसके बाद जो पेपर हमें आता है वो आईटी मैनेजमेंट से आता है, फिर एथिक्स से आता है, और फाइनली जो एग्जामिनर फोकस करता है वो उसका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे होता है, जिसमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करवाता है। लाइक आप लोगों ने बीएमबीएस में थोड़ा बहुत जो है उसे क्या कहते हैं, पेस्टल के बारे में पढ़ा होगा, कंपेटिटिव फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर आप लोगों ने वैल्यू चेन के बारे में पढ़ा होगा। तो एग्जामिनर जो है वो एनवायरनमेंट एनालिसिस करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप इसमें वीकनेसेस जो है वो फाइंड आउट करिए, स्ट्रेंथ्स जो है वो फाइंड आउट करिए, या इसी तरीके से आपने जो है वो स्ट्रैटेजी या किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करके हमें रेकमेंड करना है। तो ये मैंने बता दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्या क्या ग्रिड है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। मैंने एक पेपर यहाँ तक भी देखा कि मार्केटिंग का पेपर जो है, यानी मार्केटिंग का जो पोर्शन है वो 50 नंबर्स तक जो है वो टेस्ट किया गया था, यानी ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा सेगमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा जो लिटिल बिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि CFAP जो है वो हमारा किस तरीके का है। अब हम इम्पोर्टेंट बात जो है वो करते हैं कि भाई CFAP में बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन कि अगर आपको बिफोर हैंड जो है वो इश्यूज का पता हो तो आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो उन इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगा कि यार ये प्रॉब्लम्स आते हैं? अभी तो पैसे जब टाइम मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला, काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे फोन कॉल आए कि सर मेरा 2 अटेम्प्ट्स हो गई, 3 अटेम्प्ट्स हो गई, 4 अटेम्प्ट्स हो गई, जिसकी और मेरा पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा, 40 मार्क्स पे रुक गया, बड़े ही थोड़े मार्जिन के साथ जो है वो मेरा पेपर रह गया। तो जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि यार ये जो अभी हम लोग इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ये इश्यूज हैं। वैसे तो हसनैन साहब ने और मुजम्मिल साहब ने ओवरऑल बड़ा ही जबरदस्त और इफेक्टिव तरीके से आप लोगों को गाइड किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि CFAP के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जा सके कि एक इंडिविजुअल टॉपिक जो है उस पर हमारी जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लाइक अगर पेस्टल की बात कर ली जाए और पेस्टल पे अगर एग्जामिनर 12 नंबर का सवाल दे देता है और वो एनालिटिकल क्वेश्चन दे देता है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड का जिस लेवल पे एग्जामिनर आपको तैयार करना चाहता है आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं होती, आपने उतनी सीरियसनेस के साथ उतनी डेप्थ के साथ जो है वो तैयारी ही नहीं होती है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जो है वो इंडिविजुअल टॉपिक अगर कोई भी ले लिया जाए, जैसे मैंने पेस्टल की बात की है, उसी में ही हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सेकंड ये है कि डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। मैं अक्सर इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि कभी ये टाइम था, एक ऐसा टाइम था कि CFAP को मैं अक्सर समझता था कि ये एक यतीम पेपर है, ना कोई टीचर इसको जो है वो खुश दिली से एक्सेप्ट करता था पढ़ाने के लिए, और ना ही कोई एग्जामिनर जो है इसको जो है वो होल हार्टेडली लेते थे कि भाई हम लोग इसको टेक्निकल तरीके से जो है वो बनाएं ताकि स्टूडेंट की एबिलिटीज को हम लोग जो है वो डेवलप कर सके। लेकिन अब जो है वो एग्जामिनर ने रियलाइज किया है कि भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट पेपर है। इसकी मेरी बात को सेकंड करेंगे बाकी टीचर्स भी कि हमारे जो MSA2 है उसका 60% पोर्शन जो है वो CFAP 3 से है, यानी BMS से मुतल्लिक है, तो इतना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनर जो है अब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने लेकर के सिनेरियो की खूबसूरती ये होती है कि लाइक आप लोग रिपोर्टिंग का पेपर दे चुके हैं, आपने कैफ लेवल पे भी दिया होगा, तो रिपोर्टिंग के पेपर में या ऑडिट के पेपर में एग्जामिनर के पास एक मार्जिन जो होता है कि एक ही सवाल में 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर जो है अब सिनेरियोज दे रहा है, 70% पेपर जो है वो CFAP का अब सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है। तो एग्जामिनर जो है इसमें 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो एक ही सिनेरियो में हम लोगों से जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर ये स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट अगर मैं अच्छे तरीके से इस बात को रियलाइज नहीं करूंगा कि मुझे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो इन कनेक्शन जो है वो समझना होंगे, तो मैं पेपर को जो है वो एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लाइक पेस्टल है, पेस्टल की वजह से क्वार्टर 5 कोर्सेज जो हैं
वो अफेक्ट होती हैं, उनकी वजह से हमारी वैल्यू चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो हमारी सारी की सारी जो है वो हमें चेंज करना पड़ती हैं। तो जब तक हम लोग इस तरीके से हम लोग बातों को नहीं समझेंगे, हमारे लिए CFAP 3 को पहली अटेम्प्ट में पास करना या कोई भी अटेम्प्ट हो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बड़ी वजह जो कि स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि सर जिस तरह का पेपर आता है उस तरह का स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं है, लाइक टेक्स्ट बुक में उतना मटेरियल नहीं है जितना एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है। लाइक एक लंबी चौड़ी केस स्टडी आ जाती है, सिनेरियो आ जाता है और उस पे 12-15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन किताब में उतना मटेरियल नहीं है और हम लोगों ने उसको जो है जितना किताब में है बस उसी हद तक हम लोगों ने फोकस किया होता है, उससे बाहर हम लोगों ने सोचा ही नहीं होता। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पे इस पेपर में जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती है कि आंसर को हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो ड्राफ्ट करना है। प्रोफेशनल अप्रोच से क्या मुराद है कि एक जो है आप आंसर फ्रेम करते हो तो आंसर में हमें ये बताना होगा कि जनाब जो मैं स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहा हूँ वो किस अप्रोच के अकॉर्डिंगली है, किस मॉडल के अकॉर्डिंगली है, किस रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंगली है। तो ये एक तरीका होता है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वे के हम लोग जो है वो प्रोफेशनली आंसर लिखना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के अंदर जो है ये एबिलिटी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते जिसकी वजह से पेपर जो है वो रह जाता है। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं पता होता। खैर इस पे तो हम लोग इस वक्त बहस नहीं कर सकते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड क्लास लेक्चर्स है, इस पेपर को स्पेसिफिकली सीरियस नहीं लेते हैं। CFAP 3 को क्यों सीरियस नहीं लेते, फॉर्म में जाएंगे हो सकता है हमारे सीनियर ने आज से कोई 4-5 साल पहले जो है ये पेपर पास किया हो, तो उस वक्त जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यार ये पेपर किसी जमाने में ऐसा था कि यतीम पेपर कंसिडर किया जाता था, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता था और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे। आप नोट लिख दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को CFAP लेवल पे बंदे की इतनी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी होती है तो उसको हैंडल करना कुछ काफी हद तक जो है वो आसान हो चुका होता है। लेकिन अब अगर सीनियर की बात मानते हैं कि यार मैंने ऐसे पेपर क्वालिफाई किया था तो तुम्हें जो है वो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही इसको सेल्फ स्टडी करके जो है वो पास कर सकते हो, तो अब वो जो है टेक्निक काम नहीं आती है टू पास दिस पेपर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नॉन सीरियस एटीट्यूड, क्लास टेस्ट में जो है हमारा नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, क्लास टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं। स्पेसिफिकली CFAP 3 में हम लोग टेस्ट देना गवारा ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज अगर कोई आपको बता देता है कि जनाब आप में ये डेफिशिएंसी है तो वो बेहतर है कि बजाय इसके कि एग्जामिनर जो है वो आपको बताए कि जनाब ये डेफिशिएंसी थी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब बचना चाहते हैं कि एग्जामिनर मुझे ना बताए कोई और मुझे बता दे, तो बेहतर है क्लास टेस्ट जो है वो दिया जाए। प्रैक्टिस नहीं होती है ड्यूरिंग द सेशन, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से टाइम भी हमारा जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। कंसंट्रेशन, हमें रीडिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जब सिनेरियो आ जाता है तो मुझे रीडिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ कि मेरा एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है, जो केस स्टडी मेरे सामने आई है उसमें से क्या रेलिवेंट मटेरियल जो है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं होगा तो मेरी कंसंट्रेशन एबिलिटी जो है वो किस तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो कंसंट्रेशन का एक इशू होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जब मैंने क्लास टेस्ट नहीं दिए, मुझे ये नहीं पता कि आया कि मैं पेपर को अच्छे तरीके से हैंडल कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो जैसे पेपर मेरे सामने आते हैं एक स्ट्रेस सा जो है वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मेरा पेपर जो है ना चाहते हुए भी अच्छी तैयारी की वो मेरा पेपर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ये तो था कि भाई हर्डल्स कौन कौन सी आती है ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ CFAP 3। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आपको किस तरीके से जो है, यदि मैं आपको किस तरीके से पूरे सेशन में गाइड करूंगा कि यार कैसे हम लोग इन हर्डल्स को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि इंडिविजुअल टॉपिक में आप लोगों को मास्टर बनाया जाए, PhD नहीं करवानी है, लेकिन टू द पॉइंट रेलिवेंट विद इन द बाउंड्रीज सेट बाय एग्जामिनर जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो टॉपिक जो है वो डिलीवर करूं। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पेस्टल जो है अगर किताब की बात की जाए तो वो राउंड अबाउट कोई 5-6 सफ़ों पे वो वाइंड अप हो जाते हैं, लेकिन जो मैंने मटेरियल तैयार किया है जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर भी कर दिया जाएगा वो राउंड अबाउट 50 मतलब स्लाइड्स पे है। अब उन स्लाइड्स को याद नहीं करना होगा, वो तो जैसे ही आप लोग क्लास में आएंगे तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि इतनी डेप्थ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन अगेन
रेलिवेंट और बाउंड्री सेट बाय एग्जामिनर, उसी में रहते हुए मैंने वो मटेरियल डेवलप किया है। फिर मेरा जो पेस्टल के जो लेक्चर्स हैं वो राउंड अबाउट 7 से 8 घंटे के हैं। 7 से 8 घंटे में मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को पेस्टल ही एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि जनाब दो डिफरेंट जो या दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। लाइक पेस्टल जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे रिलेट करते हैं। जैसे ही हम लोग पेस्टल कवर कर लेते हैं फिर रिस्क मैनेजमेंट कवर करते हैं, तो फिर मेरा एक छोटा सा सेशन होता है या वीडियो के एंड पे आपको छोटा सा पार्ट मिलेगा कि किस तरीके से जो प्रीवियस टॉपिक्स कवर हो चुके हैं वो आपके इस करंट टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। प्लस प्लस मैं वहां पे ये भी गाइड करता हूँ, मतलब मेरी आदत है कि एग्जामिनर जो है किस तरीके से इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसे टेस्ट कर सकते हैं आपको, मतलब डिफरेंट अंदाज एग्जामिनर के क्या हो सकते हैं। हाँ, बहरहाल ये तो बात है कि 100% तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो जहन है वो ओपन होता है, सोचने की एबिलिटी जो है वो डिफरेंट एंगल से हमारी जो है वो डेवलप होती है, सोच पाते हैं हम लोग। तो मेरी कोशिश होती है कि एक तो इंडिविजुअल टॉपिक में आपके पास इतना मटेरियल हो कि अगर एग्जामिनर जो है वो 10 से 15 नंबर का पेपर आपको दे भी देता है, सॉरी सवाल दे भी देता है, क्वेश्चन, तो आप उसको हैंडल कर पाओ। अगर कनेक्शन से मुतालिक अगर सिनेरियो बेस्ड जो है वो उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको जो है वो इजीली टैकल कर पाओ। आपको मालूम हो जाएगा कि यार इस सिनेरियो में स्पेसिफिकली कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो एग्जामिनर मुझे जो है वो टेस्ट करना चाहता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दो जो है मतलब टीएसबी आप लोगों को जो है वो दो तरह के मटेरियल जो है वो शेयर करता है। एक तो किताब आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और काफी मैंने रिसर्च करने के बाद जो है वो तैयार किया है। लेकिन अगेन वही बात कि जितनी बाउंड्री एग्जामिनर ने जो है वो डिफाइन की है उसी बाउंड्री में रहते हुए मैंने तैयार की है। प्लस रिवीजन के लिए मैंने कुछ समरी नोट्स जो हैं वो तैयार कर रखे हैं। वो स्लाइड्स की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आप फटाफट से जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो वो दो तरह के नोट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए होंगे। पास पेपर से हम लोग जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशंस करेंगे। एवरी वीकेंड हमारा जो है वो एक लाइव सेशन होता है 2 घंटे का, जिसमें हम लोग जो है एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सर्टेन टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें मेरी कोशिश क्या होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बेसिकली हमें रीड आउट करने की जरूरत है, क्या इसमें रेलिवेंट मटेरियल जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, और फाइनली किस तरीके से जो है वो आंसर को ड्राफ्ट करना होगा। लाइक दिस वन के आंसर को हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है विद इन मिनिमम टाइम हम लोग कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। रिवीजन आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड रिगार्डिंग सीफैप 3। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि सीफैप 3 बेसिकली पेपर क्या है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक कुछ सेक्शन है जो कि राउंड अबाउट 40 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे टेस्ट करेगा। फिर आईटी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एचआरएम है, एथिक्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एग्जामिनर जो है वो एथिक्स वाले पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता चला जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि टेक्स्ट में भी आपको एथिक्स नजर आया, टेक्स्ट के पेपर में भी सीफैप 5 में आपको सीफैप 2 में भी जो है वो एथिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा नजर आया, ऑडिट में भी आप लोगों को जो है वो एथिक्स का क्वेश्चन जो है वो नजर आता है। तो एथिक्स पे एग्जामिनर इवन आईकैप जो है वो ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आते हैं, फिर आईटी मैनेजमेंट पे आते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन है वहां से जो है वो हमारे क्वेश्चन आते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड। सो Sir Hasnan, are you there? I would request you to take up the session, please. अगर आप लोगों के एंड से सीफैप 3 से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, आप लोग पूछना चाहते हो मेरे से, so kindly proceed. ये कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions, please feel free to ask. जी, आपका कोई क्वेश्चन हो? ओके, मेरा ख्याल है सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग सीफैप 3 या अदर सब्जेक्ट्स, तो आप जो है वो टेक अप कर सकते हैं। थैंक यू। Any questions before we close?
आप ट्रायल ले सकते हैं tsbeducation.com पे, लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है बजाज साहब ने। So you can take your trial, you can take a 7-day trial to understand how the course experience is, how the LMS works, or this can actually help you. सर खलील बाद में इसकी ओरिएंटेशन कराएंगे CFAP 4 की, बट ही इज नॉट हियर राइट नाउ, बट जब उनका बैच स्टार्ट होगा तो फिर उनकी ओरिएंटेशन भी साथ ही होगी बात में, ठीक है। All right. So if you ever have any questions, आप you can reach out to I think अगर आप एक नंबर भी नंबर यहाँ पे शेयर किया हुआ है 0330239807 for my subjects you can always reach out to me at these WhatsApp number. अगर आपको कोई clarification चाहिए, this is my number. This is also on WhatsApp, or if others want to share a number, they can also do it. ठीक है जी. So with this we conclude. Thank you very much for joining us. Let's conclude this session. आगे अगर कोई भी query हो, कोई भी issue हो, आप reach out कर सकते हैं to all our available numbers, and do take trial to understand and how the course experience work. ठीक है जी.